Hello, hi, good afternoon, everybody. Welcome to this brand new session of Akash Baiju's NEET. Well, as you can see, we are starting a completely new topic in kinematics today, which is relative motion, right? Now, technically, it is a part of motion in 1D, motion in 2D, but it is such an important topic, such an important chapter, so to speak, that we are covering it separately. All right. So, in NCERT textbook, you will find it with the motion in 1 dimension and 2 dimension. But here, just to put some more emphasis on it, I am taking it separately, taking all the concepts from the ground level and taking it level up. All right. So, before further ado, let's get started and here we go. These are the subtopics that we are covering in today's session. We have frame of reference, right? Although we have studied a little bit about frame of reference, जब हमने motion in 1 dimension की शुरुआत की थी, तब हमने थोड़ा सा समझा था कि frame of reference क्या होता है. आज हम इसमें थोड़ा और अच्छे से समझेंगे. Alright, we'll go into detail. Then, relative motion in 1 dimension, relative motion in 2 dimensions, and then relative motion in projectiles also. Alright, projectiles में relative motion होता है तो क्या होता है? चलिए फटाफट चलते हैं. First subtopic of the day, which is frame of reference, right? And here I'm going to ask a very very interesting question with you. Okay, तो the thing is, यहाँ पे मेरे पास एक बहुत इंटरेस्टिंग सिचुएशन है. एज यू कैन सी, यहाँ पे दो कार्स हैं. द रेड कार इज द थीव्स कार एंड ब्लू कार इज द कॉप्स कार, राइट? तो पुलिस की कार भी चल रही है, थीफ की कार भी चल रही है, एंड देयर इज दिस पेडेस्ट्रियन हु इज लुकिंग एट दिस चेज. क्यों? क्योंकि पुलिस जब थीफ को चेज कर रही होती है तो देखने में बड़ा मजा आता है, राइट? यस. सो यहाँ पे अब आप मुझे बताइए कि ऑलराइट, अगर एक सेकंड में ये कार्स इस तरीके से आगे बढ़ रही हैं, एज यू कैन सी थीफ ज्यादा तेज चला रहा है, राइट? थीफ जो है 20 मीटर्स की जगह पर है एंड कॉप की कार यहां पर है. अगर मैं आपसे ही पूछती हूं हाउ फार इज द थीफ, थीफ कितनी दूर है, तो आप क्या आंसर देंगे? कम ऑन टेल मी क्विकली. आपका आंसर क्या होगा? हाउ फार इज द थीफ? एक सेकंड में अभी यहां पर है दोनों की पोजीशंस, राइट? बाय स्टैंडर अलग देख रहा है. एंड if this question is asked, you will ask me, well, isn't this the question incomplete? ये अधूरा लग रहा है ना क्वेश्चन. क्यों? आपने पूछ तो लिया मैम कि कितनी दूर है थीफ, बट ये नहीं बताया कि कौन देख रहा है, राइट? So if I ask you how far is the thief, you will say, okay, if the bystander is watching, if this person A is watching, then the thief's car is 20 meters away, right? But अगर से पुलिस देख रहा है, तो अगर पुलिस देख रहा है तो थीफ की कार कितनी दूर है? पुलिस की कार से थीफ की कार हो गई अब 20 minus 10, which is 10 meters. ये तो 10 meters है खाली, राइट? तो दो अलग अलग आंसर्स आ जाएंगे इसके. लेट मी से अकॉर्डिंग टू यू और अकॉर्डिंग टू दिस पर्सन ए, दिस इज 20 meters, राइट? But then, according to the police, there will be a different answer altogether, right? After 1 second, this is 10 meters. Okay? Now, घड़ी और आगे जाती है. Another second, some more distance traveled. Let's see. एक और सेकंड में कितना ट्रैवल कर लेंगे ये? और ज्यादा ट्रैवल कर लेंगे. अब क्या हुआ? अब थीफ कार की डिस्टेंस और ज्यादा हो गई, right? Now, how far is the thief? Now the thief is, well, 40 meters away from person A and 20 meters away from the police, right? अब देखो यहां पे ध्यान से देखो क्या हो रहा है. जब हम मोशन की बात कर रहे हैं, जब हम डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, राइट? जब मैं आपसे पूछ रही हूं कि थीफ कितनी दूर है, तो वी ऑलवेज हैव टू स्पेसिफाई कि ऑब्जर्व कौन कर रहा है, राइट? And that is where frame of reference comes into the picture. Okay? चलिए आगे देखते हैं. अब यहां पे देखो, अगर मैं पुलिस की कार की बात करती हूं तो आपको ये दिखेगा कि एवरी सेकेंड, फॉर एवरी सेकेंड थीफ की कार 20 meters एक्स्ट्रा ट्रैवल कर लेती है कंपेयर्ड टू पुलिस कार, राइट? सो नाउ आई कैन से दैट कि 20 मीटर 1 सेकेंड में ट्रैवल किया, 40 मीटर्स 2 सेकेंड्स में ट्रैवल किया, तो पर सेकेंड कितना ट्रैवल किया? यस,
You can say that, all right, 20 meter in 1 second, another 20 meter in 1 second. So effectively, the speed at which, or the velocity at which thief's car is moving with respect to the police's car is 20 meters per second. Right? Here we go. ये जो हमने निकाला अभी अभी, ये जो हमने समझा अभी अभी कि relative to police's car, relative to police, थीफ जो है कितनी तेजी से जा रहा है, 20 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, एंड दिस इज रिलेटिव मोशन. ओके, ये है रिलेटिव वेलोसिटी. चलिए और अच्छे से देख लेते हैं. यहां पे दिख रहा है आपको कि ये आगे जा रही है. अगर मैं बोलती हूं राइट विद रिस्पेक्ट टू, अगर मैं रिलेटिव टू पुलिस की बात कर रही हूं, तो पुलिस जब अपनी गाड़ी में बैठा रहता है, ऐसे पुलिसमैन अपनी गाड़ी में बैठा हुआ है राइट, तो जब वो चला रहा होता है तो उसको लगता है मैं तो बैठा हूं राइट, उसको लगता है मैं तो स्टेशनरी हूं, मेरे रिस्पेक्ट में बाकी सारी चीजें मूव कर रही हैं राइट. एंड दैट्स अ वेरी वेरी गुड वे टू लुक एट इट एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स. क्या, जब भी हम किसी पर्टिकुलर ऑब्जर्वर की बात कर रहे होते हैं, ध्यान से सुनना इसको, जब भी हम किसी पर्टिकुलर ऑब्जर्वर की बात कर रहे होते हैं तो दैट ऑब्जर्वर ऑब्जर्विंग द मोशन राइट, से मैं फॉर एग्जाम्पल यहां पे बैठ के अगर मैं बाकी सारा मोशन ऑब्जर्व कर रही हूं तो मुझे लगेगा कि मैं तो स्टेशनरी हूं राइट. सो इफ वी आर ऑब्जर्विंग द मोशन ऑफ थीफ with respect to police, we will say that yes, in this frame of reference, in this frame of the observer, पुलिस की गाड़ी स्टेशनरी है एंड velocity of me with respect to me will always be zero राइट. मुझे तो हमेशा लगेगा मैं खड़ी हुई हूं. अगर मैं बस के अंदर खड़ी हूं, चलती हुई बस के अंदर, तो भी मुझे फील होगा कि मैं खड़ी हुई हूं. अगर मैं बैठी हुई हूं से चलती हुई गाड़ी के अंदर, तो भी मुझे लगेगा मैं आराम से बैठी हुई हूं. माई वेलोसिटी इज जीरो विद रिस्पेक्ट टू मी राइट. एंड इज माई वेलोसिटी रियली जीरो? थिंक अबाउट इट मोर, बिकॉज मैं तो धरती पर हूं और धरती क्या कर रही है? धरती ऐसे ही खड़ी हुई है क्या? नो राइट. Okay, all right. So here is where the idea of frame of reference comes into full force, right? क्या कि frame of reference क्या है? The frame of reference is the frame attached with the observer. जो भी ऑब्जर्वर ऑब्जर्व कर रहा है मोशन, उस हिसाब से आपको मोशन दिखेगा. अगर मोशन से रोड पे खड़ा हुआ इंसान ऑब्जर्व कर रहा है तो अलग टाइप का मोशन दिखेगा. अगर बगल में चलता हुआ इंसान कर रहा है तो अलग टाइप का मोशन दिखेगा राइट. से फॉर एग्जांपल, अनदर एग्जांपल, हियर आई हैव गॉट बॉय ए एंड बॉय बी. बॉय ए और बी अगर ये दोनों के दोनों बाइक का मोशन ऑब्जर्व कर रहे हैं तो आप ध्यान से देखो, बॉय ए तो रोड पर खड़ा हुआ है, बट बॉय बी जो है वो स्केट बोर्डिंग कर रहा है. मतलब ये ऑलरेडी खुद भी मूव कर रहा है राइट. एंड अगर बाइक का मोशन देखेंगे तो क्या होगा? सी, अगर दोनों साथ साथ में मूव कर रहे हैं तो विद रिस्पेक्ट टू बॉय बी देयर विल बी जीरो वेलोसिटी ऑफ द बाइक राइट. खड़े हुए बंदे को खाली लगेगा कि दोनों मूव कर रहे हैं. सो मेक सेंस. फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या क्या अटैच्ड होता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, देयर आर 3 थिंग्स वी लुक फॉर. ऑलराइट. फर्स्ट ऑफ ऑल, वेयर, मतलब किसी भी मोशन को ऑब्जर्व करने के लिए ऑब्जर्वर के पास क्या क्या चीजें होंगी? पहली तो स्पेस कोऑर्डिनेट राइट. यू विल चूज a set of coordinate axes x, y, z and choose an origin with respect to which you will be looking at the motion right. तो origin of the coordinate axes किधर जाएगा? origin of the coordinate axes most of the time हम observer की जगह पर ही रख लेते हैं. ठीक है. say for example, if I am observing, I will observe distance of things from me right. मेरी पोजीशन से मैं ऑब्जर्व करूंगी. That's it. Now similarly, when की बात करते हैं तो टाइम कोऑर्डिनेट, दैट मीन्स द ऑब्जर्वर, इमेजिन कर लो ऑब्जर्वर के पास एक स्टॉप वॉच है. ठीक है. तो जैसे ही मैंने किसी मोशन को ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया, मैंने वो स्टॉप वॉच ऑन कर दी एंड दैट इज when I start the stopwatch, that is when I will say motion has started. मैंने ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया, that is when t equal to 0 occurs right. यहां से हमने टाइम मेजर करना स्टार्ट कर दिया, although time is immemorial right. so टाइम तो हमेशा चलता ही रहता है.
t इक्वल टू 0 हम तब बोलते हैं जब से हमने मोशन स्टार्ट किया, और रादर ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया. ठीक है? ओके. हु रिपोर्टेड? दैट्स अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. ऑब्जर्वर इटसेल्फ, राइट? तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस में 3 चीजें होंगी. एक तो कोऑर्डिनेट एक्सिस, सेट ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस प्लस ओरिजिन, देन टाइम, एंड देन द ऑब्जर्वर इटसेल्फ. ओके, ये अगर आपको समझ में आ गया हो तो और आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं. राइट? अभी अभी हमने देखा कि दो अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से सेम मोशन को अलग अलग तरीके से ऑब्जर्व करेंगे. Right? And then if we talk further about frame of reference, we will say that motion is the combined property of object and observer. Right? And is defined with respect to an observer. समझ लो भाई, जब मैं थीफ की गाड़ी की बात कर रही थी, थीफ्स कार्स मोशन, if I had to find out कितनी दूर है थीफ की कार, how far away is it, we had to give कौन देख रहा है, right? We had to tell whether person A is watching or the policeman is watching, right? मतलब motion is always combined property of the person who is moving, the object that is moving, as well as the observer who is observing, right? Or the frame of reference. Okay. Similarly, an object is said to be in motion with respect to an observer. ध्यान से सुनो, with respect to an observer, if its position changes with respect to that observer, right? अगर दोनों से ट्रेन में बैठ के मैं जा रही हूं, मेरे बगल में एक और पैसेंजर बैठे हुए हैं, तो हमें क्या लगेगा? मुझे लगेगा कि मेरे बगल में जो बैठे हुए पैसेंजर वो तो रेस्ट पे है, राइट? बट ही इज इन रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू मी, राइट? तो अगर मैं ऑब्जर्व कर रही हूं तो मेरे रिलेटिव में, मेरे रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट का मोशन होना चाहिए, ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होनी चाहिए. ठीक है? बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया? ऑलराइट. Motion may happen by both ways, either observer moves or object moves. दोनों में से कोई भी मूव करेगा तो चलेगा, राइट? कभी कभी दोनों भी मूव कर रहे होते हैं तब भी चलेगा, राइट? जब हम मोशन ऑब्जर्व कर रहे होते हैं किसी ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में, तो उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, उस ऑब्जर्वर के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ऑब्जर्वर्स मोशन ऑटोमेटिकली बिकम जीरो. ठीक है? और अच्छे से देखेंगे, ठीक है? ये चीज और अच्छे से मैं समझाने वाली हूं, हाउ इट बिकम जीरो. There is nothing like absolute motion or absolute rest. Yes, absolute motion और absolute rest कुछ नहीं होता है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है. Why it is meaningless? Because as I just said, right now if I think that I am stationary, really? Am I really stationary? अगर मैं absolute terms में बात करती हूं तो really? Because I am on Earth, and what's happening? Earth's revolving around the sun, it's rotating on its own axis, sun itself has its motion, the entire galaxy is moving, right? Everything is expanding in space. You know this. Everything in space is accelerating anyway. So, motion कैसे define करोगे? Rest किसको बोलोगे? Right? So, motion will always be defined with respect to an observer. ये हमेशा ध्यान रख लो. ओके? बिल्कुल समझ में आ गया ये. आगे बढ़ते हैं. Let's get into the nitty gritty of relative motion. जब हमको समझ में आ गया कि motion is relative, it's always relative, let's get to how to deal with relative motion in one dimension, and then we will go for 2 dimension. ठीक है? चलो 1 dimension में चलते हैं. अब तक सब कुछ समझ में आ चुका है अच्छे से, और अगर आ चुका है तो फटाफट बताते चले जाओ. चलो, relative motion in 1 dimension. Now, अगर मैं relative motion की बात करती हूं तो भाई मोशन तो तब होता है ना जब पोजीशन चेंज होती है, राइट? तो पोजीशन देखना आना चाहिए. ओके, पोजीशन कैसे देखना आना चाहिए यहां पे देखते हैं अपन. अगर मुझे ए की पोजीशन, राइट, यहां पे मेरा ओरिजिन है. कैन यू सी जीरो? यस, यू कैन सी जीरो. ए इज ओवर हियर. ओके, A is over here, B is over here. Do you see that origin के रिस्पेक्ट में A की पोजीशन है XA, origin के रिस्पेक्ट में B की पोजीशन है XB, right? Now, if I want to see B's position with respect to A, then how will I do it? B's position with respect to A will just be
position of B with respect to the origin, with respect to the stationary frame of reference, or rather ground frame हम बोल देते हैं. Okay, so position of B with respect to ground minus position of A with respect to ground. अगर हमें वेक्टर टर्म्स में निकालना होता है तो इस तरीके से हम निकाल लेते हैं. ठीक है. सो रिलेटिव पोजीशन कैसे निकालेंगे? पोजीशन ऑफ B with respect to A is position of B minus position of A. Okay. नाउ ये बी ए जो लिखा हुआ है, दिस टेल्स यू बी विद रिस्पेक्ट टू ए, और रादर कई बार बी स्लैश ए भी लिख देते हैं इसको. ठीक है. दिस इज हाउ वी राइट relative to something, relative position. Okay, x of b with respect to a ऐसे लिख देते हैं. ठीक है. Now अगर हमें पोजीशन मालूम है और अगर अलग अलग टाइम पे पोजीशन हमें पता रही तो जिस तरीके से पोजीशन चेंज होगी उस तरीके से हमें मोशन मिल जाएगा. राइट. दैट मीन्स इफ आई डिफरेंशिएट पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, बिकॉज अगर मैं रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन की बात करूंगी तो मुझे वेलोसिटी मिल जाएगी. राइट. ओके. सो रिलेटिव पोजीशन को ही अगर हम डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्या मिलेगा हमें? डी बाई डी टी ऑफ पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, विच विल गिव मी डी बाई डी टी ऑफ पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, position of B with respect to ground minus d by dt of position of A with respect to ground. Right? Yes. And rate of change of position dx by dt क्या होता है? Velocity. Right? ये सबको मालूम है. Velocity होता है तो लिखो. Let's see relative velocity. यहां से हमको मिल गई relative velocity. Velocity of B with respect to A is equal to velocity of B minus velocity of A. अब कैसे मेजर कर रहे हैं ये? वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. स्टेशनरी ऑब्जर्वर, ग्राउंड पर जो ऑब्जर्वर है उसके रिस्पेक्ट में क्या क्या वेलोसिटीज है. ठीक है. अब यहां पर थोड़ा सा एक कॉन्ट्रडिक्शन आता है अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो. सो जनरली कहीं पर तो हमको एक स्टैंडर्ड frame of reference लेके चलना पड़ेगा. राइट. सो जनरली फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग फॉर एवरीथिंग वी टेक ग्राउंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस एज स्टैंडर्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस. ठीक है. बिकॉज जनरली वी ऑल वॉक ऑन ग्राउंड और हमारे रिस्पेक्ट में जनरली जितने भी मोशंस हो रहे होते हैं हमारे रिस्पेक्ट में ग्राउंड स्टेशनरी होता है. राइट. ऑल्दो अर्थ इज रिवॉल्विंग एंड रोटेटिंग बट स्टिल वी फील इट इज स्टेशनरी. राइट. ओके. तो हम ग्राउंड फ्रेम को स्टैंडर्ड लेकर के चल लेंगे. ओके. एंड देन using that we can find out relative velocity. अभी भी थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होगा, आई नो. अभी वेक्टर रिलेशंस देख लो ध्यान से, फॉर्मूला देख लो ध्यान से, उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा. ओके. नाउ नेक्स्ट इज रिलेटिव वेलोसिटी को अगर डिफरेंशिएट किया तो क्या होगा? भाई वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करते हैं तो एक्सेलरेशन मिल जाता है. रिलेटिव वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे तो रिलेटिव एक्सेलरेशन मिल जाएगा. राइट. वेरी सिंपल. ओके. तो relative velocity को हमने डिफरेंशिएट किया d by dt of velocity of b with respect to a. This gives me d by dt of velocity of b with respect to ground minus d by dt of velocity of a with respect to ground. Right? Okay. Now d by dt क्या होता है? एक्सेलरेशन. dv by dt क्या होता है? एक्सेलरेशन. सो dv by dt यहां पर हमने एक्सेलरेशन लिख दिया. Acceleration of b with respect to a, relative acceleration is just acceleration of b minus acceleration of a with respect to ground. तो इसमें कॉमन थ्रेड क्या निकला? क्या चीज हम याद रख सकते हैं अगर थोड़ा भी कंफ्यूजन हो रहा हो तो? ये कि अगर हमें रिलेटिव पोजीशन निकालनी है तो पोजीशंस को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. पोजीशन ऑफ बी माइनस पोजीशन ऑफ ए. अगर हमें रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है बी विद रिस्पेक्ट टू ए, बी की वेलोसिटी ए के रिस्पेक्ट में, तो जिसकी वेलोसिटी निकालनी होती है उसको पहले लिखोगे माइनस जो ऑब्जर्व कर रहा होता है जिसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे होते हो उसको बाद में लिखोगे. वेक्टर सब्ट्रैक्शन करोगे तो आपको मिल जाएगी रिलेटिव वेलोसिटी. सिमिलरली रिलेटिव एक्सेलरेशन करना है तो एक्सेलरेशन का सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा. कैसे? अगर बी का एक्सेलरेशन निकाल रहे हो रिलेटिव टू ए तो बी के एक्सेलरेशन को पहले लिखोगे और क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे? ए का एक्सेलरेशन, क्योंकि ए तो ऑब्जर्वर है. राइट. ऑब्जेक्ट पहले, ऑब्जर्वर बाद में. ओके. ये समझ में आ गया. चलो अब
इन द फ्रेम ऑफ ए, जैसा कि मैंने बताया मेरे फ्रेम में मैं हमेशा रेस्ट पे रहूंगी। तो अब जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं तो इट्स अ वेरी वेरी इजी वे ऑफ थिंकिंग अबाउट इट कि अगर दो बॉडीज मूव कर रही हैं तो एक बॉडी को रोक दो, उसके रिस्पेक्ट में काम कर लो, एंड इट बिकम्स वेरी वेरी इजी। ओके, रिलेटिव मोशन का यूज क्वेश्चंस को इजी करने में होता है, इजीली सॉल्व करने में होता है। कई बार, राइट, मोस्ट ऑफ द केसेस में, इनफैक्ट 100% ऑफ द केसेस में रिलेटिव मोशन के बिना भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, बट लंबे सॉल्यूशंस चले जाते हैं, कई बार कॉम्प्लिकेटेड सॉल्यूशन चले जाते हैं। सॉल्यूशंस को इजी करने के लिए रिलेटिव मोशन इज अ topic that can be used, it's a concept that can be used mostly to make questions easy, अगर हम एग्जाम के टर्म्स की बात करते हैं तो। ठीक है, अदर देन दैट कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल सिंपल है कि देयर इज नो मोशन दैट इज एब्सोल्यूट, दैट्स इट। ठीक है, चलो अब यहां पे देखते हैं कि अगर हमारे पास कभी भी, अब ये आ गई प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्विंग टेक्निक की बात कर रही हूं। कभी भी क्वेश्चन में आपको दो या दो से ज्यादा, थंब रूल बता रही हूं, ध्यान से सुनो, कभी भी आपको क्वेश्चन में व्हेनेवर यू फाइंड टू और मोर देन टू थिंग्स मूविंग, ठीक है, दे कैन बी एनीथिंग, दे कैन बी पीपल, कार्स, बस, ट्रक, एरोप्लेन, एनीथिंग फॉर दैट मैटर, राइट। Whenever you find two or more things moving, stop one of them and work with respect to that. ठीक है, अब किसको स्टॉप करोगे, कैसे पता चलेगा? अगर ए बी मूव कर रहा है तो ए को स्टॉप करूं कि बी को स्टॉप करूं? अनदर थंब रूल, जो इजियर मोशन है उसको स्टॉप कर दो एंड लुक एट द मोर कॉम्प्लिकेटेड मोशन और लेस इजियर मोशन विद रिस्पेक्ट टू द वन दैट यू हैव स्टॉप्ड। ठीक है, चलो इनफ थ्योरी, अब अच्छे से क्वेश्चन के हिसाब से देखेंगे अपन, वील सी हाउ टू सॉल्व क्वेश्चंस। ओके, यहां पे आप देख सकते हैं कि अगर मेरे पास बी मूव कर रहा है, राइट, ए भी मूव कर रहा है, अब दो अलग अलग मोशंस को एक साथ एनालाइज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, राइट। तो हम क्या करते हैं, एक को स्टॉप कर देते हैं। लेट्स से हमने ए को स्टॉप कर दिया, ए को स्टॉप कर दिया मतलब as soon as I calculate velocity of B with respect to A, as soon as I calculate velocity of B with respect to A, acceleration of B with respect to A, and displacement of B with respect to A, I will be able to say that for all of this A is stationary. ठीक है, तो अब क्या हुआ, दो मोशन से हमने, दो साइमल्टेनियस मोशन से हमने एक मोशन में रिड्यूस कर लिया प्रॉब्लम को, राइट। एंड दैट इज ऑलवेज इजियर, नो, डीलिंग विद वन मोशन इज ऑलवेज इजियर देन डीलिंग विद टू मोशंस, ऑफ कोर्स इट इज। यही हम करते हैं, एंड विद द चेंज इन फ्रेम द ओरिजिन ऑफ एवरी पैरामीटर इज रिकैलिब्रेटेड, राइट। ओरिजिन ऑफ ऑल द पैरामीटर्स, पोजिशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, सब का पैरामीटर्स का ओरिजिन रिकैलिब्रेट हो जाएगा। मतलब क्या हुआ, रिलेटिव वेलोसिटी निकालोगे आप, रिलेटिव एक्सेलरेशन निकालोगे, कैसे निकालोगे, सबट्रैक्ट करके, बताया था मैंने, राइट। एंड अब एट दिस पर्टिकुलर इंस्टेंट ए को हम रेस्ट पर मान लेंगे। ठीक है, चलो, ऑलराइट, ये अच्छे समझ में आ चुका है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग। रिलेटिव पोजीशन कैसे कैलकुलेट करते हैं? एज आई सेड, position of A with respect to B is equal to position of A with respect to ground minus position of B with respect to ground, right? Okay. Observer by object, object by observer, object by observer को जब कैलकुलेट करोगे तो ऑब्जेक्ट माइनस ऑब्जर्वर कर लोगे। ठीक है, ओके। वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करोगे? वेलोसिटी विद विच एनी ऑब्जेक्ट A appears to move according to an observer of object B, V A with respect to B, कितना आ जाएगा? अगेन सबट्रैक्ट करोगे, वेलोसिटी ऑफ A with respect to B is equal to VA with respect to ground minus VB with respect to ground. That's it. ठीक है, और अच्छे से देख लेते हैं, राइट। अब यहां पर देखो, मेरे पास क्या है, दो साइक्लिस्ट्स हैं, राइट। These two cyclists are there. And do you see that velocity of A with respect to ground is already there, right? ये right side में जा रहा है, A ground के respect में right side में जा रहा है, B भी ground के respect में left side में जा रहा है।
ये वेलोसिटीज हैं हमारे पास. अब व्हेन आई से ऑब्जर्वर इज ग्राउंड, दैट मीन्स ऑब्जर्वर इज अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड, राइट? अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑन द ग्राउंड. मतलब क्या हुआ? इफ दिस इज अ स्टैंडिंग पर्सन एंड लेट्स कॉल हिम C. C is watching, C is observing, then these are the velocities. Okay? अब देखो, अगर ये क्रॉस कर रहे हैं एक दूसरे को, राइट? अगर ये क्रॉस कर रहे हैं एक दूसरे को, तो D is the displacement, right? Rather, or D is the distance that is being covered, right? By both of them together. मतलब कुछ डिस्टेंस ये कवर कर रहा है, A कवर कर रहा है, कुछ डिस्टेंस B कवर कर रहा है, राइट? अब अगर हम इसको फिर से देखते हैं किसी एक के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, राइट? अब अगर हम ग्राउंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में देखने की बजाय बी के फ्रेम में देखें, राइट? तो हमने क्या किया? बी के साथ ये पूरा का पूरा कोऑर्डिनेट एक्सिस अटैच हो गया, राइट? मतलब बी को हमने रोक दिया. अब बी के रिस्पेक्ट में अगर हम देखेंगे, बी को हमने रोक दिया, तो क्या हुआ? इन दैट सेम अमाउंट ऑफ टाइम विद रिस्पेक्ट टू बी, ए इज कवरिंग, right? A is covering this displacement with how much velocity? With velocity VAB, right? And VAB कितना है? Velocity of A with respect to B is velocity of A with respect to ground minus velocity of B with respect to ground. कैसे वेक्टर्स थे ये? V1, V2 इस तरीके के वेक्टर्स थे, ऑपोजिट डायरेक्शन में थे. जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या होगा? दिस विल बी इक्वल टू V1 माइनस, अगर मैं इसको पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्शन बोलती हूं, वेक्टर्स में वेलोसिटीज में जब डील कर रहे होते हैं तो पॉजिटिव नेगेटिव डायरेक्शन देखना पड़ता है, राइट? अगर मैं पॉजिटिव नेगेटिव डायरेक्शन देखती हूं तो V1 माइनस माइनस V2, राइट? एंड जब हमने किया तो हमें क्या मिला? V1 प्लस V2. यहां पर दोनों V1 प्लस V2 से यहां पर यू कैन सी दैट A is moving with V1 plus V2 with respect to B, right? Okay. Now, when I look at the other way around, right? मतलब क्या हुआ? हमने A को खड़ा कर दिया, ध्यान से देखो, A को खड़ा कर दिया और B का मोशन अब देख रहे हैं. B का मोशन विद रिस्पेक्ट टू A, मतलब क्या हुआ? अब वेलोसिटी ऑफ VB विद रिस्पेक्ट टू A हम कैलकुलेट करेंगे. कैसे कैलकुलेट करेंगे? अगेन बाय द सेम वे. ये पॉजिटिव नेगेटिव हमने कुछ चेंज नहीं किया है. अगर VA थी V1, VB थी V2, राइट? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, तो हम कैसे करेंगे? Velocity of B with respect to A is equal to velocity of B with respect to ground minus velocity of A with respect to ground, right? तो हम क्या लिखेंगे इसको? VB with respect to ground minus VA with respect to ground, which is equal to minus V2 minus V1, which is minus of V1 plus V2, which means, see, negative sign indicates that relative velocity, this entire thing is in the negative direction, right? Negative direction में है, इस direction में है relative velocity, and what is the magnitude? The magnitude is V1 plus V2, right? मतलब जब आपने A को खड़ा किया तो B उसको दिख रहा है V1 plus V2 से मूव करता हुआ, B को खड़ा किया तो A उसको दिख रहा है V1 plus V2 से मूव करता हुआ, right? Yes. And from here we understand that velocity of A with respect to B vector is equal to negative velocity of B with respect to A vector, right? Yes. ये समझ में आ गया? ये दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड बराबर हैं, डायरेक्शंस ऑपोजिट हैं. ओके, ऑलराइट. एंड टाइम टेकन टू क्रॉस अगर निकालना पड़े हमें तो टाइम टेकन कितना निकल के आएगा? D डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2. यहां से भी यही टाइम निकल के आएगा. अगर हमने A को स्टॉप कर दिया और मोशन को देखा तब भी सेम टाइम निकल के आएगा. B को स्टॉप कर दिया और मोशन को देखा, B के रिस्पेक्ट में मोशन को देखा तब भी सेम टाइम निकल के आएगा. एंड इट मेक्स सेंस, नो? थिंक अबाउट इट. मोशन तो हो रहा है. अब चाहे मैं ऑब्जर्व करूं, चाहे आप ऑब्जर्व करो, चाहे कोई और पर्सन ऑब्जर्व करे, राइट? टाइम टेकन बाय दैट मोशन विल बी द सेम. मेक सेंस? ओके, ऑलराइट. लेट्स सॉल्व अ क्वेश्चन. ऑलराइट, लेट्स अंडरस्टैंड इट even better. Okay, here we have two ships. Two ships are 20 kilometer away, start to move towards each other. ठीक है, A और B ships हैं, ये एक दूसरे के
ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, टुवर्ड्स ईच अदर दे स्टार्ट मूविंग, right? Speeds of ship A and ship B are 50 km per hour and 70 km per hour respectively. After how much time will they cross each other? Right? इनकी स्पीड्स हैं 50 किलोमीटर पर आवर एंड 70 किलोमीटर पर आवर. कितने टाइम के बाद ये क्रॉस करेंगे? अभी अभी मैंने बताया, साइकिल्स को लेकर के बताया, बट फंडा तो वही है, राइट? कम ऑन, सी व्हाट्स द आंसर ओवर हियर. एज यू कैन सी दीज शिप्स आर क्रॉसिंग ईच अदर, राइट? इनिशियली ये 20 किलोमीटर के डिस्टेंस पर थी एंड पहली शिप 50 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रही है, दूसरी 70 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रही है. अगर मैं इसको बोलती हूँ V1 है ये, अगर मैं इसको बोलती हूँ V2 है ये, दो मोशंस दिख रहे हैं मुझे. थंब रूल ऑफ मोशन इज, अगर दो या दो से ज्यादा मूविंग चीजें दिखती हैं तो क्या करेंगे हम? एक को स्टॉप कर देंगे, एक के रिस्पेक्ट में, कोई भी एक, राइट? उसके रिस्पेक्ट में हम ऑब्जर्व करेंगे, उसको स्टॉप कर देंगे. किसको स्टॉप करेंगे? ये भी मैंने बताया, इजियर मोशन को, राइट? इजियर मोशन कौन सा है अब यहां पर? भाई दोनों ही यूनिफॉर्म स्पीड से जा रही हैं तो दोनों बराबर हैं, राइट? बट स्टिल what I will do is I will say forward direction, positive direction, negative direction. Here we go. अगर मैं negative direction वाले को stop कर देती हूं तो मेरे लिए easy होगा solve करना. Okay. Still I'm trying to make math as easier as possible. ठीक है, चलो मैंने B को stop कर दिया. अगर मैंने B को stop कर दिया मतलब I am looking at the motion from frame of reference of B, right? तो अब हम क्या बोलेंगे? B तो stopped है. अब क्रॉस करने के लिए पूरा का पूरा डिस्टेंस ए को ट्रैवल करना पड़ेगा, राइट? कितनी स्पीड से ट्रैवल करेगा? रिलेटिव वेलोसिटी से ट्रैवल करेगा, राइट? रिलेटिव वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, राइट? ए ट्रैवल कर रहा है बी के रिस्पेक्ट में, ओके? तो ए विद रिस्पेक्ट टू बी वेलोसिटी जैसे ही हम निकालेंगे, वेक्टर पहले तो ध्यान रखना, ठीक है? वेलोसिटीज आर वेक्टर क्वांटिटीज. व्हेनेवर वी कैलकुलेट वेलोसिटी वी हैव टू टेक केयर ऑफ द साइन, ओके? ऑलराइट, क्या आ गया हमारे पास? वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. कैसे कैलकुलेट करेंगे? दिस बिकम्स इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, राइट? क्या हुआ? ये ए की वेलोसिटी है 50 किलोमीटर पर आवर इन द पॉजिटिव डायरेक्शन मतलब प्लस 50, माइनस बी की वेलोसिटी है 70 किलोमीटर पर आवर इन नेगेटिव डायरेक्शन मतलब माइनस 70. कितना आया ये? 50 प्लस 70, दिस गिव्स मी 120 किलोमीटर पर आवर. ये है रिलेटिव वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, राइट? रिलेटिव वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है अगर, तो हमको मालूम है टाइम टेकन क्या होता है. टाइम टेकन, अगर हमने बी को स्टॉप कर रखा है तो ए को ये पूरा का पूरा डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट कवर करना पड़ेगा. टाइम टेकन विल बी इक्वल टू एस डिवाइडेड बाय वी, राइट? रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट S relative, which is S of A with respect to B divided by V of A with respect to B, right? जितने हमारे इक्वेशंस है ना, जितने हमारे कॉन्सेप्ट्स है जो अभी तक हमने पढ़ रखे हैं, for uniform motion displacement is equal to velocity into time. For uniformly accelerated motion we've got 3 equations of motion and 4 equations of motion, right? ये सारे के सारे लगेंगे as it is, okay? Alright, क्या आ गया हमारे पास? S relative displacement is 20 kilometers divided by relative velocity is 120 kilometer per hour. अभी हमने कैलकुलेट की थी, उसी को हम लगाएंगे. This becomes equal to 1/6 hours, right? टाइम कितना आ गया? 1/6 hours. अगर मिनट में लिखना चाहते हैं तो हम मिनट में लिख सकते हैं. This time becomes equal to 10 minutes, right? Yes. Option A becomes the correct answer. Do you understand what is happening? Yes, you do, right? दो बॉडीज अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं V1 से और V2 से, तो रिलेटिव वेलोसिटी इनकी क्या हो जाएगी? वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B मैग्नीट्यूड बराबर वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A मैग्नीट्यूड बराबर V1 प्लस V2. ओके, ये शॉर्टकट ध्यान में रख सकते हो. प्रैक्टिस करते करते ये अपने आप ध्यान में आ जाएगा, ठीक है? Now, let's get to it. Let's get to the next question. Next question क्या है? Jet airplane traveling with a speed of 750 km per hour ejects its smoke at a speed of 1500 km per hour. Right? Jet airplane, this is relative to the jet. What is the velocity of smoke with respect to an observer on the ground?
अब देखो ये जो स्मोक इजेक्शन की वेलोसिटी है, जेट एयरप्लेन है जो कि स्मोक इजेक्ट कर रहा है, राइट? अब ये जो स्मोक फेंकता है, ये वेलोसिटी रिलेटिव दे रखी है. दिस इज गिवन विद रिस्पेक्ट टू द जेट इटसेल्फ. हमसे पूछा है स्मोक की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है. बिल्कुल निकाल सकते हैं हम, राइट? ओके, लेट्स सॉल्व इट, लेट्स फिगर इट आउट. एज यू कैन सी, जेट ये जो मूव कर रहा है, जब भी हमें relative velocity से डील करना है, we always will remember the basic equation, which is what? Velocity of A with respect to B is equal to velocity of A with respect to ground minus velocity of B with respect to ground. And this is a vector relation, right? अब एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लो, दूसरे डायरेक्शन को नेगेटिव मान लो एंड काम कर लेते हैं. चलो, स्टैंडर्ड हमारे पास है, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, एंड दिस गिव्स मी वैल्यूज. अब देखो यहां पर अगर मैं बोलती हूं कि स्मोक की वेलोसिटी निकालनी है, स्मोक को ए ले लेते हैं, जेट एयरप्लेन इज बी, तो कैन आई से दैट दिस इजेक्शन वेलोसिटी दैट इज गिवन इज स्मोक्स वेलोसिटी रिलेटिव टू प्लेन. मतलब वी ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ये हमारे पास दे रखा है. कौन सी डायरेक्शन में है? पॉजिटिव डायरेक्शन में है. ऑल राइट, सो प्लस 1500 हमें गिवन है. वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, जेट प्लेन बी है, ये ए है, ये हमें चाहिए है. वेलोसिटी ऑफ स्मोक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड चाहिए है, माइनस, राइट, माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. जेट एयरप्लेन की वेलोसिटी कितनी है? नेगेटिव डायरेक्शन में है, 750. सो माइनस 750 लिखना पड़ेगा, राइट? एग्जैक्टली, दिस बिकम्स इक्वल टू वी स्मोक with respect to ground plus 750. This is equal to 1500, right? The velocity of smoke with respect to ground कितनी आ गई? Velocity of smoke with respect to ground becomes equal to 1500 minus 750 is equal to 750 kilometer per hour, right? Exactly. And here we go. Option number A is the correct answer. देखो कितने आराम से हम ये velocities निकाल सकते हैं, right? As long as you maintain vector relation sign सही तरीके से सब्स्टिट्यूट कर दो आप, सब सही तरीके से निकल जाएगा. ठीक है, चलिए, अब तक सब कुछ समझ में आ चुका है तो बिल्कुल अच्छे लाइक्स दबा दीजिए. ऑलराइट, गिव्स अस मोटिवेशन एज वेल. एंड इफ यू डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग, डू पुट डाउन योर क्वेश्चंस इन द कमेंट्स. आई विल कम बैक एंड आई विल रिप्लाई टू दोस. ठीक है, बिल्कुल होगा ये. चलिए, रिलेटिव मोशन में एज आई टोल्ड यू कॉन्सेप्ट वही है, एक कॉन्सेप्ट है खाली. वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी वेक्टर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वेक्टर माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वेक्टर. यही कॉन्सेप्ट है. ठीक है, अब इसके आगे क्वेश्चंस जितना आप समझोगे कैसे अप्लाई करना है इस कॉन्सेप्ट को, उतना आपसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे. ठीक है, चलिए. Next, this question is here. Particle A is moving with speed 10 meter per second towards the right, while particle B is moving at a speed 10 meter per second towards right, and another particle C is moving at a speed of 10 meter per second towards left. अब यहां पे देखो तीन चीजें मूव कर रही हैं. The separation between A and B is 100 meters. The time interval between C meeting B and C meeting A is. ओके, ध्यान से देखो. क्वेश्चन क्या है? टाइम इंटरवल बिटवीन सी मीटिंग बी एंड सी मीटिंग ए. तो अब अच्छे से फिगर को समझते हैं. सी क्या कर रहा है? सी लेफ्ट की तरफ जा रहा है, तो सी सबसे पहले बी को क्रॉस करेगा, बी को मीट करेगा. फिर क्या होगा? थोड़ी देर के बाद सी ए को क्रॉस करेगा, ए को मीट करेगा, राइट? ये टाइम इंटरवल हमको निकालना है. दिस डेल्टा टी इज व्हाट वी वांट. हाउ डू वी डू दैट? अगर हम तीनों मोशंस को साइमल्टेनियसली ऑब्जर्व करेंगे तो यार बड़ा मतलब बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा. अभी क्या करेंगे हम? थंब रूल. व्हाट इज द थंब रूल? व्हेनेवर यू गेट अ काइनेमैटिक्स का प्रॉब्लम एंड देयर आर टू और मोर देन टू बॉडीज मूविंग, स्टॉप वन ऑफ देम. किसको स्टॉप करेंगे? ईजियर मोशन को स्टॉप करेंगे
और देखते देखते भी समझ में आएगा, ठीक है, ये प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। मोस्टली थंब रूल, इजियर मोशन को स्टॉप कर दो। ओके, अब यहां पे क्या है, यहां पे तो सारे के सारे इजी मोशंस है। इजी मतलब नो एक्सेलरेशन व्हाटसोएवर, राइट, सारे के सारे वन डायमेंशनल यूनिफॉर्म मोशन हो रहे हैं। तो चलो देखते हैं और अच्छे से देखते हैं। अब यहां पे देखो, ए और बी दोनों की सेम वेलोसिटीज हैं, सेम डायरेक्शन, सेम मैग्नीट्यूड। तो अगर मैंने ए को स्टॉप किया, से आई स्टॉप ए, देन ऑटोमेटिकली बी भी स्टॉप हो जाएगा ना, बिकॉज ए और बी दोनों देखो बिल्कुल साथ साथ चल रहे हैं, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में उनका कोई मोशन नहीं है, दोनों साथ में चल रहे हैं ऐसे, राइट? यस। सो यहां पे व्हाट डिड वी डू, वी किल्ड टू बर्ड्स विद वन स्टोन, राइट? एक पत्थर से दो चिड़ियों को मार दिया हमने। क्या, अगर हमने स्टॉप ए किया तो बी भी ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगा, बी ऑटोमेटिकली, राइट, स्टॉप्स। एंड अब हम सी का मोशन आराम से ऑब्जर्व कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि सी क्रॉस कर रहा है ना दोनों को। ओके, चलो लेट्स स्टॉप ए। ए को यहां पे स्टॉप कर दिया तो बी ऑटोमेटिकली यहां पे स्टॉप हो गया। बट अब ए के फ्रेम में सी कैसे मूव करेगा? सी विल मूव विथ relative velocity, right? Okay, c will move with relative velocity, right? So c velocity of c with respect to a becomes how much? We can calculate. चलो पॉजिटिव नेगेटिव डायरेक्शंस रख लेते हैं। इस बार आई वांट टू कीप दिस डायरेक्शन एज पॉजिटिव, राइट? हम लेफ्ट साइड पॉजिटिव रख लेते हैं, राइट साइड नेगेटिव रख लेते हैं। क्यों? क्योंकि जिस मोशन को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं वो तो लेफ्ट साइड में जा रहा है ना, इट्स इजियर दैट वे, राइट? ओके, चलो अब अगर हमने ऐसे रख लिया तो हमें क्या दिख रहा है? वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ए विल बी वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ओके, क्या निकल के आ रहा है ये? चलो फटाफट देखो। वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज +10 माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड -10। क्यों? नेगेटिव डायरेक्शन में है। -10, हियर वी गो, दिस इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड, राइट? 20 मीटर पर सेकेंड जैसे ही हमारा निकल के आ गया, अब हमें समझ में आ गया कि ओके, राइट नाउ द सिचुएशन इज वेरी वेरी सिंपल। हियर वी हैव ए एंड बी बोथ स्टेशनरी, ओनली सी इज मूविंग। कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी दोनों को क्रॉस करने के बीच में? 100 मीटर ट्रैवल करेगी। बी को जैसे ही इसने क्रॉस किया उसके बाद 100 मीटर ट्रैवल करके ए को क्रॉस करेगी। कितनी स्पीड से ट्रैवल कर रही है? कर रही है 20 मीटर पर सेकेंड से। तो टाइम क्या लगेगा? टाइम विल डायरेक्टली बी इक्वल टू, हियर वी गो, टाइम इज इक्वल टू s बाय v। मतलब कितना हुआ? दिस इज इक्वल टू 100 by 20, 100 by 20, this is equal to 5 seconds, right? Exactly, time becomes equal to 5 seconds. And what is the answer? Option number B is the correct answer, right? देखो relative motion यूज करके कितना इजी हो गया ये क्वेश्चन। सिंपल, टाइम इज इक्वल टू 100/20 से आ गया। अगर आप relative motion नहीं यूज करते तो आप देखते रह जाते कौन कितना मूव कर रहा है। लेट्स से A traveled x, B traveled x, C traveled 100 minus x and stuff, right? Okay, let's move on. Now, relative motion में जैसे कि मैंने आपको बताया कि it is very very important to understand one concept and then apply that concept into multitude of different problems, right? different problems solve करना, different questions solve करना बहुत important है, quality questions solve करना बहुत important है, and that is why here we go, आकाश बायजूस ऐप अभी बिल्कुल फ्री है। पर्सनलाइज्ड प्रैक्टिस होती है, पर्सनलाइज्ड लर्निंग होती है। आप जब प्रैक्टिस करते हो और आप जब क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो आपके सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनालिटिक्स भी आपको दिखाता है। पर्सनलाइज्ड एनालिटिक्स, आपको अपनी स्ट्रेंथ्स पता चलती हैं, वीकनेसेस पता चलती हैं, राइट? डू चेक इट आउट। अगर अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो डेफिनेटली डाउनलोड करो और चेकआउट करो। एंड मेक श्योर बाय द टाइम tonight comes, before going to sleep tonight, make sure you practice 20 to 25 questions of relative motion. Okay, very very important to cement the funda in your head. Okay, all right, let's move on.
Here we go. Relative motion in 2 dimensions. ठीक है, अब देखो, एक बार अगर relative motion का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना, तो सेम चीज अप्लाई हो रही है 2 डायमेंशन में. दैट्स इट. जैसे मोशन इन 1D एंड 2D हुआ था, राइट? What happened in general idea of motion in 2D? Well, we said we've already studied motion in 1 dimension. Straight line motion हमको आता है. अब अगर मल्टीपल डायमेंशन में हो रहा है, 2 डायमेंशन में हो रहा है, तो हम 2 पार्ट्स में ब्रेक कर लेंगे. मोशन अलोंग एक्स एक्सिस सेपरेट, मोशन अलोंग वाई एक्सिस सेपरेट, राइट? यहां पे हम क्या कर रहे हैं? यहां पर भी हम वही चीज कर रहे हैं. वी आर ब्रेकिंग इट इनटू 2 पार्ट्स. मोशन अलोंग एक्स एक्सिस सेपरेट, मोशन अलोंग वाई एक्सिस सेपरेट. It's just that now we are looking at that motion with respect to an observer which might be or might not be moving. ठीक है? That's the only difference out there. Alright? So जब हम यहाँ पर relative position निकालते हैं, तो R of A with respect to B is equal to RA minus RB. ये जो relative position है, this might have 2 components. Right? I cap का component होगा, J cap का component होगा. आपको vector subtraction आता है. देखो यहां पर मोशन इन अ प्लेन हो रहा है अगर, तो B यहां पर है, A यहां पर है, B की पोजीशन माइनस A की पोजीशन माइनस B की पोजीशन विल गिव यू रिलेटिव पोजीशन ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B, राइट? सेम फंडा है. ऑब्जेक्ट बाय ऑब्जर्वर इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट माइनस ऑब्जर्वर. इस तरीके से ध्यान रख सकते हो. ठीक है? ऑब्जेक्ट पहले, ऑब्जर्वर बाद में. ओके, नाउ पोजीशन को डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन मिलेगा, विच इज व्हाट, विच इज वेलोसिटी. यहां पे भी वही हो रहा है, सेम चीज, राइट? वेलोसिटी जब आप लिखोगे VAB इज इक्वल टू VA माइनस VB, अगेन दीज वेलोसिटीज देमसेल्व्स माइट हैव I कैप J कैप कंपोनेंट्स. हमें आता है कैसे डील करना है, राइट? वेक्टर सब्ट्रैक्शन हमें आता है. इन मोशन इन 1 डायमेंशन यू वर जस्ट डीलिंग विद मोशन अलोंग 1 एक्सिस. आप सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव वेलोसिटीज की बात कर रहे थे. यहां पर आप क्या करोगे? यहां पर आप वेलोसिटीज को I कैप J कैप के फॉर्मेट में लिख लोगे, राइट? एंड हियर ऑल्सो व्हेन वी लुक एट मोशन ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B, राइट? X डायरेक्शन का रिलेटिव मोशन, Y डायरेक्शन का रिलेटिव मोशन साइमल्टेनियसली हो रहे हैं, बट दोनों को अफेक्ट नहीं कर रहे हैं. एक दूसरे को अफेक्ट नहीं कर रहा, दूसरा पहले को अफेक्ट नहीं कर रहा. क्यों? क्योंकि motion parameters along perpendicular axes are independent of each other. They do not interfere in each other. X डायरेक्शन, Y डायरेक्शन का एक्सेलरेशन X डायरेक्शन के मोशन में नहीं घुसेगा, वहां इंटरफियर नहीं करेगा, राइट? सब अपने अच्छे अच्छे चलते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड चलते हैं. ठीक है? अच्छे अच्छे लोगों की तरह. कैसे? X डायरेक्शन का एक्सेलरेशन, X डायरेक्शन की वेलोसिटी Y डायरेक्शन के एक्सेलरेशन वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट में इंटरफेयर नहीं करेगी. Y डायरेक्शन की वेलोसिटी एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट X डायरेक्शन के पैरामीटर्स में इंटरफेयर नहीं करेगा. ठीक है? जस्ट व्हाट हैपेंस, दोनों साथ साथ में हो रहे हैं, साइमल्टेनियस हो रहे हैं, तो टाइम इज द कॉमन थिंग. सेम थिंग दैट वी हैव डन इन 2 डायमेंशन मोशन इन जनरल, राइट? सेम कॉन्सेप्ट. ओके, ये अच्छे समझ में आ गया. तो वेलोसिटीज को भी अगर डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा? विद रिस्पेक्ट टू टाइम dv by dt is acceleration. Here we go, relative accelerations. These also might have 2 components. I cap J cap में मिल जाएगा आपको. Okay, if it is relative motion in 2 dimension, then 2 components आएंगे. सेम फंडा के साथ अगर हमारे पास पार्टिकल्स, राइट, अगर 2 बॉडीज मूव कर रही हैं, दोनों स्पेस में मूव कर रही हैं अपनी अलग अलग तरीके से, दोनों मोशंस को साइमल्टेनियस एनालाइज करना वेरी वेरी डिफिकल्ट. व्हाट डू? वी स्टॉप वन ऑफ देम. जब स्टॉप करते हैं तो उनका सिंस स्पेस में मोशन हो रहा है, वो आपको दिख जाएगा मोशन इन रिलेटिव मोशन इन 3 डायमेंशन. ओके, दैट्स इट, सेम कॉन्सेप्ट. ओके, चलो, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा होगा. एंड रिलेटिव मोशन इन 2 डायमेंशन जब हम देखेंगे तो वेल, दीज वेक्टर रिलेशंस come into the picture. and जब हमारे पास ये वेक्टर्स आते हैं तो हमको समझ में आ जाता है कि we are talking about vectors in I cap J cap और I cap J cap K cap format. okay, acceleration uniformly accelerated motion होगा तो आपके पास 3 equations of motion लग जाएंगी, whether that is acceleration with respect to ground or acceleration with respect to another observer. ठीक है? सेम कॉन्सेप्ट. चलो आगे बढ़ते हैं.
Let's understand relative motion in projectiles specifically. Now, again, although these are different subtopics, so to speak, projectile is just one form of, one particular example of two-dimension motion, right? That's it. Motion in a plane, a specific type of motion is projectile motion. क्या होता है, आप एंगल पे बॉल को फेंक देते हो, and this is motion under gravity where ball or the projectile follows a parabolic path, right? ये मालूम है हमको, ये हम पढ़ चुके हैं. यहां पर देखो, अगर दो प्रोजेक्टाइल्स हैं स्पेसिफिकली जो कि ट्रैवल कर रहे होंगे, तो दोनों का मोशन साइमल्टेनियसली देखने की बजाय हम क्या कर सकते हैं, हम एक को रोक के उसके रिस्पेक्ट में दूसरे का मोशन देख सकते हैं. ठीक है, चलो. Here we have two balls A and B projected with speeds UA and UB respectively. तो अब क्या लिखेंगे हम? We can write U of A as U cos theta I cap plus U sin theta J cap. Initial velocity कैसे लिख सकते हैं? U cos theta I cap plus U sin theta J cap. A का है तो U A और theta A लिख देंगे यहाँ पर. B का है तो भी उसी तरीके से U cos theta I cap plus U sin theta J cap. B का है तो UB और थीटा B लिख देंगे यहाँ पे. That's it, no? Very simple. इनिशियल वेलोसिटी हमको मालूम है, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल स्पीड हमको मालूम है U एंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है थीटा, राइट? एक्सेलरेशंस, दोनों के दोनों एक्सेलरेशंस बराबर हैं. यहां पे इट बिकम्स अ स्पेसिफिक सिनेरियो. क्या? दोनों के दोनों प्रोजेक्टाइल्स, राइट? कोई भी प्रोजेक्टाइल हो, बाय डेफिनेशन if it's a projectile, it's motion under gravity. Okay, if it's motion under gravity, then acceleration is acceleration due to gravity. ध्यान से सुनो, बहुत अच्छी चीज होने वाली है अब. क्या? जैसे ही आप relative acceleration calculate करोगे, okay, जैसे ही आप A relative calculate करोगे, A relative, A with respect to B acceleration is acceleration of A with respect to ground minus acceleration of B with respect to ground, and what you get is 0. Identical vectors हैं, right? दोनों के दोनों माइनस जी जे कैप, राइट? डाउनवर्ड अगर हम माइनस जे कैप लेते हैं, अपवर्ड अगर हम प्लस जे कैप लेते हैं, तो ग्रेविटी की कौन सी डायरेक्शन है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज वर्टिकली डाउनवर्ड्स, राइट? सो दोनों के एक्सेलरेशन बराबर हैं. अगर बराबर वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो क्या मिलेगा? 0, नल वेक्टर. मतलब क्या हुआ? relative motion of two projectiles with respect to one with respect to another is a uniform motion, right? Not accelerated. A relative is 0. Okay? अब हम relative velocity लिख सकते हैं, right? Acceleration of B with respect to A भी 0 है, acceleration of A with respect to B भी 0 है. तो अब यहां पर हम देख सकते हैं कि अगर मैंने एक को रोक दिया, ठीक है, मान लो मैंने A को रोक दिया, A और B दोनों प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहे थे, राइट? अगर मैंने A को रोक दिया अपनी जगह पर, ये देखो A रेस्ट पर है, A के रिस्पेक्ट में हम देख रहे हैं, तो क्या दिखेगा? B का मोशन कैसा दिखेगा? विथ 0 एक्सेलरेशन, राइट? अपने खुद के फ्रेम में ए का मोशन तो स्टेशनरी रहेगा, राइट? आई मीन ए विल बी स्टेशनरी इन इट्स ओन फ्रेम. माई मोशन इज 0 इन माई ओन फ्रेम. आई एम स्टेशनरी, राइट? सिमिलरली ए विल बी स्टेशनरी इन इट्स ओन प्लेन. ओके, बट बी कैसा दिखेगा? बी दिखेगा कांस्टेंट वेलोसिटी से जाता हुआ. कौन सी कांस्टेंट वेलोसिटी? सी, u of b with respect to a will be equal to velocity of b minus velocity of a. वेक्टर सब्ट्रैक्शन जब आप करोगे तो आपको ये मिलेगा ub cos theta b minus ua cos theta a I cap plus ub sin theta b minus ua sin theta a j cap, राइट? एक वेक्टर में से दूसरे वेक्टर को आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया, आपको तीसरा वेक्टर मिल गया. ठीक है, I cap j cap के कॉम्पोनेंट में ये हो गया हमारा डायरेक्शन relative velocity का. And since acceleration of B with respect to A, relative acceleration 0 है, मतलब क्या हुआ? ये जिस velocity से जा रहा है
उसी वेलोसिटी से जाता रहेगा जाता रहेगा जाता रहेगा, एंड ए के फ्रेम में ऐसा लगेगा कि बी तो स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है. ओके, इन फ्रेम ऑफ ए, इन एज फ्रेम, बी's मोशन इज यूनिफॉर्म. ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना. कई बार डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं इसमें से कि दो प्रोजेक्टाइल हैं, दोनों को साइमल्टेनियसली फायर किया, राइट? दो प्रोजेक्टाइल्स हैं और रादर दो लोग हैं. से फॉर एग्जांपल, दो लोगों को अगर बिल्डिंग के टॉप से साइमल्टेनियसली फेंक दिया गया तो ए को बी का मोशन कैसा दिखेगा? आई नो वो पहला कंसर्न होगा उसका अपनी जान बचाना, बट अगर वो क्यूरियस निकला तो वो देखेगा बी कैसा गिर रहा है, राइट? पीपल वॉन्ट टू लुक एट अदर पीपल्स डाउनफॉल, तो वो बी का मोशन देखेगा, उसको लगेगा अरे ये तो स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, राइट? ओके, ये ध्यान में रखना. इन टू प्रोजेक्टाइल्स, relative acceleration of one with respect to the other, कोई भी दो में से, one with respect to the other is 0. यूनिफॉर्म मोशन दिखता है. आगे बढ़ते हैं. Let's solve a question. Alright, let's understand more about it. Here we go. A person sitting at the rear end of a compartment throws a ball towards the front end. Okay, the ball follows a parabolic path. कंपार्टमेंट है आपका, कंपार्टमेंट में एक बंदा बैठा हुआ है, अब रियर एंड में बैठा हुआ है, ऐसे बॉल फेंक रहा है फ्रंट एंड की तरफ. ऑलराइट, मेक सेंस. द बॉल फॉलोज अ पैराबोलिक पाथ. द ट्रेन इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड. राइट, अब दिस इज, इफ दिस इज फ्रंट, दिस इज रियर, मतलब फ्रंट फॉरवर्ड मूव करता है. हम अज्यूम कर लेंगे ट्रेन की डायरेक्शन ये है, ठीक है. 20 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी ऑफ ट्रेन is equal to 20 meter per second. A person standing outside the ground also observed the ball. Right? बाहर एक बंदा बैठा हुआ है, वो भी observe कर रहा है. How will the maximum height attained and the range seen by the thrower and the outside observer compare to each other? Oh, projectile का maximum height, which is this, and range, right? ये कैसे दिखेगा? अंदर बैठे हुए बंदे को कैसा दिखेगा और बाहर खड़े हुए बंदे को कैसा दिखेगा, राइट? ये आपसे पूछा जा रहा है. ओके, लेट्स सी. फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, किस तरीके से प्रोजेक्टाइल जा रहा है? हियर वी गो. ये है रियर, दिस इज द रियर एंड ऑफ द कंपार्टमेंट, थ्रोज द बॉल टुवर्ड्स द फ्रंट एंड, राइट? दिस इज द फ्रंट एंड ऑफ द कंपार्टमेंट. Train is moving with uniform velocity of 20 meter per second and a person standing outside the ground is also observing, right? तो outside person को ये मान लेते हैं हम. Alright, अब कैसे जा रहा है ये? इस तरीके से जा रहा है. Alright, now do you see that it's forward motion, right? Forward motion of the ball can be considered as u cos theta and upward velocity will be u sin theta, right? Now, if I look at maximum height depends on vertical velocity, तो उसका ट्रेन के horizontal motion से कोई लेना देना नहीं होगा, right? Okay, and उसका कोई लेना देना नहीं होगा. ये है maximum height, चाहे पर्सन बाहर खड़ा होकर देख रहा हो, चाहे अंदर से देख रहा हो, right? चाहे पर्सन बाहर से खड़ा होकर देख रहा हो, चाहे अंदर से देख रहा हो, we know that maximum height will not change. What about range though? Range depends on horizontal motion, right? तो अंदर, ट्रेन के अंदर अंदर तो रेंज दिख रही है से R और R1 बोल सकते हैं. बाहर वाले बंदे को कैसे दिखेगा? बाहर वाले बंदे को दिखेगा कि भाई ट्रेन के अंदर अंदर तो बॉल ट्रैवल कर रही है, बट ट्रेन भी तो ट्रैवल कर रही है, राइट? तो बाहर वाले को लगेगा कि नेट बॉल ने ज्यादा ट्रैवल कर लिया. क्यों? क्योंकि बॉल बैक टू फ्रंट ट्रैवल कर रही है और ट्रेन भी फ्रंट ट्रैवल कर रही है, राइट? ओके, हमको ये समझ में आ जाता है कि चेंज आएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में, विच इज रेंज, बट वर्टिकल कंपोनेंट में कोई चेंज नहीं आएगा. ऑलराइट, only horizontal component of the velocity of the ball will be affected, vertical component का कोई effect नहीं आएगा. Okay, all right, you can see that option number B is the correct answer.
And here, what did we understand? We understood how to apply relative motion in a question in which not a lot of calculation was there, right? हम अंडरस्टैंडिंग लगा रहे थे relative motion की. अब देखो, ट्रेन दो तरीके से मूव कर सकती थी यहाँ पर अगर हम रियर एंड से फ्रंट एंड में भेज रहे हैं, बॉल को अगर हम रियर एंड से फ्रंट एंड में फेंक रहे हैं और ट्रेन फॉरवर्ड जा रही है, तो रेंज आउटसाइड विल बी ग्रेटर देन रेंज इनसाइड. बाहर वाले इंसान को रेंज ज्यादा दिखेगी कंपेयर टू अंदर वाले इंसान को. बट अगर ट्रेन उल्टा मूव कर रही है, राइट, इफ द ट्रेन इज मूविंग फॉरवर्ड ट्रेन, तो रेंज आउट विल बी ग्रेटर देन रेंज इन. बट अगर ट्रेन बैकवर्ड मूव कर रही है, बैकवर्ड ट्रेन्स मोशन, राइट, अगर ट्रेन्स मोशन बैकवर्ड है तो क्या होगा? तो range of the ball will look smaller, right? Range in will be greater than range out. Okay, ये बात समझ में आ गई? Yes. All right. Now, a lot of you were a bit confused about कि आप कब आते हैं मैम. बहुत सारे लोग पूछ रहे थे मैम आपकी क्लास का टाइमिंग क्या होता है, व्हाट एंड सो ऑन. तो लेट मी रिमाइंड यू अगेन कि वी कम लाइव all of us, right, for physics, chemistry, biology, botany, zoology, सारे subjects के लिए मिशन MBBS हमारा रोज होता है. We come live every day, every weekday from 3 p.m. till 7 p.m. Alright, you'll have Vivek sir for chemistry, I am there for physics, Sachin sir for zoology, Pankhuri ma'am for botany, and Pushpendu sir again for zoology. Alright, and here is where I'll take your leave. Alright, I hope आपको relative motion बहुत अच्छे से समझ में आया होगा. As you know, there is only one concept. Basic concept एक ही है, उसी को हम 1 dimension में लगा देते हैं, उसी को हम 2 dimension में लगा देते हैं. The idea here is that once you understand the concept, practice. Okay? उसके लिए आकाश बायजूस का ऐप डाउनलोड करिए और पर्सनलाइज्ड प्रैक्टिस करिए. Until next time, happy learning. Bye bye.